السلام علیکم. وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ 35 کے ساتھ میں آ چکی ہوں. بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف. تو لیٹس اسٹارٹ. پل نہیں پہنتا منہ پھیلا کر بے مقصد بات کا ذمہ داری سمجھتے جواب دیا، جس پر اشپا بنا انجام کی پرواہ کیے اس درجہ قربت پر ہنستی. اس لمحہ حنان ابراہیم کو لگا وہ لڑکی بہت خوش ہے. حنان کا دل چاہا وہ یوں ہی اس کی بازوؤں کے حصار میں کھڑی مسکراتی رہے، اور پھر وہ سر جھکاتا اس کی گال سے گال رب کرتا، اس کی اشارت سے ہوتا بیٹی بون پر شدت بھری ہونٹوں کی مہر بخشتا. اشپا کے وجود کی تہہ تک اپنے استحقاق سے کپکپاہٹ اتار گیا. نان وہ پوری قوت سے اس سے دور کرتی مچلی. یہ اس لیے دوبارہ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا. نہ تو میں بچہ ہوں، نہ میرے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہے. اب ہٹو، جان کو مت آؤ. پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے وہ زوئے، کیسے ڈھونڈوں گا. نانا نے اس کی سہمی آنکھوں میں آنکھیں کاٹتے تنبیہی بگڑے تیور دکھائے اور اسے اپنے جنونی پن کی جھلک دکھا کر پرے کرتا بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا. لیکن اشفاق کپکپاتی ٹانگوں سے بیڈ کی پوچھ کا سہارا لے کر بمشکل میٹرس پر بیٹھ پائی. پورا وجود اس شخص کے لمس کی لپیٹ میں جکڑ کر رہ گیا. لگا گردن پر جلن ہو رہی ہے، ہاتھ بھی لگائے پر جنرل ہرنوز برقرار تھی. کس قسم کا وحشی رومانس تھا یہ؟ بدتمیز انسان کس قسم کی کس تھی یہ؟ میرے اللہ، میری سکن سن ہوگی. تجھے بھی یہ سوغات لینے کا شوق چڑھا تھا؟ بھگت اشپو کی بچی. بچہ لفظ کی بھی یہ سربراہ توہین کر گیا. اشپا کا بس نہ چلا، اپنا سر پیٹ لے. پر ابھی تو بیچاری بیوٹی بون کے کی سکن سے ہلا رہی تھی جہاں مجسور مہر حنان ابراہیم کی کارروائی کا وہ ثبوت چھوڑ چکی تھی. جب یہ معلوم ہوتا تو ایک بار تو اس نے لازمی چیخنا تھا. زوئے جیسے جیسے وہاں سے بھاگ تو نکلی، پر جس جگہ پہنچی وہاں ارد گرد گہرا سناٹا تھا. دور پاس سیدھی سڑک تھی. اب میں کہاں جاؤں گی؟ پاسپورٹ تو اس کمینے کے پاس ہی رہ گیا. اف، زوئے نے سڑک کنارے ہی بیٹھے سر تھام لیا. یوں اس کا آزادی پانا بھی فضول تھا. ابھی وہاں بیٹھے 2 منٹ ہی گزرے کہ ایک تیز رفتار سیاہ بڑی گاڑی اس کے قریب ہی سڑک پر رک گئی. اس سے پہلے وہ اسے نان سمجھ کر وہاں سے دوڑتی، کسی باری مردانہ آواز نے زوئے فرجام کے قدم روکے. محمد، میرا تعلق حنان ابراہیم سے نہیں، اس آدمی سے جس نے تمہاری عزت بچائی تھی. میرے ساتھ آ جاؤ تاکہ تمہاری تھائی لینڈ واپسی کے انتظام ہونے تک اس درندے سے بچو. زوئے نے جب اس کے یہ دوستانہ مگر کڑے الفاظ سنے تو پلٹنے پر مجبور ہوئی. سامنے ایک 29-30 سال کی عمر کا قداور نفیس وجیح آدمی کھڑا تھا. حلیے سے وہ پڑھا لکھا مگر لہجے سے فی الحال نرم لگا. لیکن سب سے مضبوط وہ حوالہ تھا جو اس آدمی نے دیا، جو زوئے کو اس کی سرد مہری اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی طرف آنے پر مجبور کر گیا. کیا تم سچ میں اس آدمی کو جانتے ہو؟ پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ. میں اسے تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. کہیں وہ جہان تو نہیں ہے؟ زوئے کے سوال پر مقابل وہ شخص دھیما سا طنزیہ مسکرایا. تمہیں جہان یاد ہے؟ حیرت ہوئی. ورنہ عورت اس مرد کو کہاں یاد رکھتی ہے جو اس کے جنون میں مر رہا ہو؟ ایسی تو ہرگز نہیں. سے تو اپنی پسند سے سرکار رہتا ہے. ہاں، اب حنان کا بگڑا روپ اس کی زمین میں آ کر دیکھنے کے بعد تمہیں شاید عقل آ گئی. اب جہان تو کیا، ایسا ہر شخص یاد آئے گا جو تمہارے لیے التفات بری نظر رکھتا تھا. کوئی اور نہیں، ساحر جبران خان کا سب سے پیارا ساتھی، واحد دوست ڈاکٹر محب بلوچ تھا، جسے اس نے کچھ دن سے حنان کے فارم ہاؤس کے آگے پیچھے نگرانی پر لگا رکھا تھا. اور جب زوئے بھاگی تب محب بلوچ اتفاق سے اپنے 2 کارز کے پاس ہی بریفنگ لینے آیا. مگر بھاگتی زوئے پہ جب نظر پڑی تو اس کا پیچھا ہو گیا اور گاڑی میں ہونے کی وجہ سے اس تک پہنچ گیا. تم اس کے بہت قریبی لگتے ہو جو اتنا کچھ جانتے ہو. محب اس کی شاہ کی بات سن اسپاٹ ہوا، رگوں میں تک تلہی کلی. بیٹھو گاڑی میں. نہایت تندہی سے زوئے کو دیکھنے سے اجتناب پرتتے ہوئے سرد سا حکم دیا کہ آپ پہلے بتاؤ کون ہے وہ آدمی پلیز. زوئے میں چلتے استفسار پر محب نے غصے سے اس فرنگی مگر دل کو کسی زمانے میں شدت سے مطلوب ہوئی عورت کو دیکھا. وہی عورت جس کے جنون نے اس کے کیریئر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. وہ چاہیں گے تمہارے سامنے آ جائیں گے. میرا میٹر شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بیٹھو. نے سرد مہری کی انتہا کے ڈانٹا تو وہ جیسے اس وقت جان کے لالے پڑے تھے. فوری اس کی گھورتی نظر پر گاڑی کی پچھلی طرف جا بیٹھی محب بلوچ نے بھی اپنے قدم بڑھائے اور فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بنا ایک نظر ڈالے سنجیدگی سے گاڑی چلا دی. سارا راستہ محب بلوچ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. لیکن زوئے فرجام بار بار ضروری خوبصورت سے مغرور آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے سرد لہجے میں بھی گرمائش تھی، جس کا چہرہ وہ جنبیت کے باوجود دیکھا بالا محسوس کر رہی تھی. اسے اس آدمی کو دیکھ کر بھی ایسا لگا جیسے وہ اس سے مل چکی ہے، لیکن اس سے آمنا سامنا ساحر کی طرح ایک بار نہ ہوا تھا کہ یادداشت سے مٹ جاتا. تم نیورولوجی اسپیشلائزیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے نا؟ میرے اور حنان کی کلاس فیلو یاد آ گیا. 10 منٹ کے سفر کے بعد جب گاڑی ایک رہائشی مگر چھوٹے سے خوبصورت سے گھر کے سامنے بنی گلی میں رکی تو باہر نکلتے ہی زوئے نے جٹ سے اس کے سامنے آتے جان پہچان نکالی. محب کی آنکھوں میں جلن سی جگی. اوہ، میں یاد آ گیا تمہیں، لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا تم جیسی مغرور نے کبھی میری طرف دیکھا بھی ہوگا. لہجے میں طنز تھا. زوئے نے سر جھٹکا کیونکہ دیکھا اس نے واقعی نہیں تھا. پھر بھی وہ اسے یاد تھا. وہ اپنی طرف اٹھتی ہزاروں نظروں کے بیچ پلی بڑی تھی. اس کے لیے محب کی موجودگی ایک خوشنما منظر سے زیادہ کی نہ تھی. ایسا منظر جسے آنکھوں کی راحت کے لیے چند لمحوں کے لیے دیکھ لیا جاتا ہے. تو اب تو تم بہت بائی جی ٹائپ تھے، اب تو بڑے ہاٹ ہو گئے اور ڈاکٹر بن کر غرور آ ہی جاتا ہے. افسوس میں ایز اے پروفیشن نہیں جاری رکھ سکی. تمہارے اور حنان ابراہیم کی طرح پاپس نے زبردستی ڈلوایا تھا اس بوریت میں. ویسے تم جہان کو تو بھی جانتے ہو کیونکہ وہ اکثر مجھے پک کرنے آتا تھا، لیکن مجھے جہان بالکل پسند نہیں تھا. وہ پاپس کا لاڈلا ہے، انہیں کی چوائس ہے. وہ بہت چپکو ہے. اب مجھے حنان بھی زہر لگتا ہے. اب مجھے وہ آدمی کی تلاش ہے جس نے مجھے بچایا. ہو سکتا ہے میرا مسٹر پرفیکٹ وہی ہو. تم بتاؤ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. زوئے کی ساری ناقابل برداشت باتیں سن کر پہلے تو محب نے عجیب سی نظروں سے اس بے ایمان سی عورت کو دیکھا، پھر اس کی آخری باتوں پر زہریلا ہنسا. زوئے کو اس کی ہنسی سے عجیب سا خوف آیا.
पढ़ने का बहुत शौक हो रहा है तो मैं इसी को गनीमत समझो कि इस आदमी ने एक ऐसी लड़की की इज़्ज़त बचाई जिसे अपनी इज़्ज़त खुद रोने का शौक हो रहा है। वो तो नेकी कर गया पर तुम्हारे करतूत किसी बुलाई वाले नहीं है अभी भी। पहले तुम मुसलमान नहीं थी, ईसाई हो अहले किताब, फिर भी तुमने अपने वक़ार की हिफाजत ना की। हर मज़हब औरत के हकूक़ किसे देता है, इसे हुक्म देता है खुद को डांप कर और एक मर्द के वफ़ादार बनकर रहने का। अफ़सोस तुम तो वाक़ई हवस परस्त निकली। कोई दीन ईमान नामी चीज़ है या नानी इब्राहिम नामी के जुनून के पीछे सब पेच खाया। महब की बातें ज़ोया को झंझोड़ सा गई अपने खुले गिरेबान को। महब की जिगर पाश बातों के बाद जैसे इसने खींच कर डांपा, वो हरकत महब बलोच की नज़रों से चुप ना सकी। सीने की जलन और ज़ुबान की कड़वाहट में इजाफा कर गई। तुम वापस की मम्मी जैसी बात कर रहे हो, यानी मेरी ग्रैंड मदर। कुछ माह पहले ही मरी वो भी सब ऐसा ही कहती थी। और तुम मुझे डांटो तो मत, पहली मुलाकात में इतना रोब। तुम ऐसे हो तो वो बंदा कैसा होगा। मेरी इससे मिलने की एक्साइटमेंट किल मत करो। तो ने बेजारियत से यहाँ वहाँ देखा, मोहल्ला काफ़ी सुनसान था। तुम अपने ये मकरू इरादे अपने अंदर ही दफन कर लो, यही बेहतर है। अगर भाई को पता चला तुम इनके बारे में फजूलियात सोच रही हो तो तुम्हें इसी घर के सैन में ज़िंदा काट देंगे और तुम पर रहम खाने का पछतावा अलग। वो तुम जैसे किसी को क्यों मिले कि अपनी मोहब्बत पा लेने वाले खुश नसीबों के फहरिस्त में लिखा है उनका नाम। तुम जौहन जैसे वाराही के लायक हो, चलो अंदर। महब का तबाह हुआ अंदाज देखे वो आंखों में जिज करती शरारत लिए से देखने लगी। हाँ, और तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? तुमने मोहब्बत में नहीं की या पाई नहीं एंग्री बर्ड। ज़ोई को महब दिल से लगा पर महब इस पर बहुत साल पहले 2 हर्फ भेज चुका था। मोहब्बत वही अच्छी है जो हासिल हो जाए, ला हासिल हर जिस पर लानत के लायक ही है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। महब के जवाब में एक वहशत और तकलीफ सी थी। क्या तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली? ज़ोई के सवाल में फ़िक्र थी, वो इस लायक ही नहीं थी कि उसे मैं मिलता। जवाब ज़ोई के चेहरे पर हैरत लाया। ओ एटीट्यूड, तुम इतने मज़ेदार बंदे हो। मुझे पता होता तो काफ़ी पहले तुमसे हेलो हाय कर लेती, पर सॉरी अभी मेरा दिल इस बंदे पर आया हुआ है। कब वो मुझसे मिलने आएगा इतना बता दो। ज़ोई की बेसुरोपा बातें इस महब को सुलगा रही थी। उसका चेहरा सुरपबूल हुआ, जाने कैसी उसकी बर्दाश्त का कितना इम्तिहान लिया जा रहा हो। क़यामत वाले दिन बार बार एक ही बकवास करोगी तो काट खाने के साथ मेरा हाथ भी उठ जाएगा और तुम्हारे मुँह की सफ़ेद चमड़ी देखते ही देखते सुर्ख पड़ जाएगी। इनका तो अलग हिसाब लूँगा, तुम जैसी मनहूस की रखवाली पर जो लगा कर गई हैं। महब में मज़ीद उसकी बक बक सुनने का स्टैमिना न था, तभी बाजू से पकड़े घर की अंदरूनी तरफ लेते बढ़ा और छोटे से रिहायशी करके बड़े कमरे में लाकर बेदर्दी से ज़ोई की बाजू छोड़ी। एक कैद से दूसरी कैद ज़ोई का हल्क पर लम्हा भर सूखा। कैसे खुरदरे इंसान हो तुम, ज़रा भी लेडीज़ को डील करने की तमीज़ नहीं। ये पाकिस्तानी मर्द सब एक से पागल हैं क्या? ज़ोई की ज़ुबान पर बाजू में उठते दर्द पर खुजली हुई तो मुँह बसोड़े बड़बड़ाई। मैं तो लेडीज़ के नाम पर तबाह हूँ। महब ने मुँह तोड़ जवाब तनतना कर दिया। मैंने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं बनाया जो तुम ये गाली दे रहे हो। ज़ोई के अंदर अब भी गैरत थी जो बलबला गई। अच्छा, तो जहाँ से चिपक चिपक करके ट्यूशन लेती थी अभी वो पसंद नहीं था, तभी बहुत बार मैंने तुम दो के नाज़ेबा मनाज़िर आंखें बचाने के बावजूद देखे, बिना नान की मर्ज़ी के इसको अपने साथ जोड़ कर निकाह जैसे बंधन की बेहरमती जो की उसका क्या तुम जानती हो? हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती की शादी का कोई वजूद नहीं और सबसे मजबूत चीज़ मर्द की रजामंदी है, तब जाकर वो औरत के लिए हलाल होता है। जब बनाने ने कोई रजामंदी दी ही नहीं तो पिछले 7 माह से जब जब तुमने उसे छुआ सख्त गुनाह की मर्तकब हुई हो। ये निकाह जो झूठ फरेब और ज़बरदस्ती पर हुआ उसकी दो कोई वक़्त ना थी। अब बताओ क्या जायज़ बचा हुआ है? तुम्हारी ज़िंदगी में बातें करवा लो। महब की रूह कायल करती बातें तेज़ हंजर की तरह ज़ोई के सीने के पार हुई। ना कोई लफ्ज़ बचा, ना एतराज़ और जवाज़। यूँ था जैसे ज़ोई पर जाम के जिस्म का रेशा रेशा उधड़ कर इस फ़िज़ा में तहलील कर दिया गया हो। इब्ने जब महसूस किया वो खामोश हुई है तो बेसाता पलटा, मगर ज़ोइफ़ा जाम की कभी न रोती आंखों में इस लम्हा जो नदामत की नमी थी वो महब बलोच का सीना जिक्र गई। कम बात यही तो उसकी वो मोहब्बत थी जिस वो छोड़ने पर मजबूर हुआ था। मेरा मकसद तुम्हारी दिल आज़ारी करना नहीं था, बस गलत दुरुस्त का फ़र्क बताना था। अगर तुम दिल से अपना मज़हब भी अपना लेती तो आज ऐसी ना होती, क्योंकि बेहयाई कोई मज़हब नहीं सिखाता। हम मुसलमान अहले किताब को बुरा ना समझते हैं ना जानते, लेकिन असल मज़हब जो अपनी अवल शक्ल में अब तक रोहे ज़मीन पर है वो सिर्फ़ इस्लाम है। जो हमारे दीन का मजाक उड़ाएगा हमसे बर्दाश्त नहीं। महब ने उसकी नम आंखें देखते इस बार लहजा नरम किया। ज़ोई ने तिशना सी नज़र उठाई कर लाती से सकती हुई, मुझे सच में मुसलमान होना है प्लीज़। ज़ोई के अगले जुमले पर महब तक थम कर रह गया, लेकिन जो सच्ची और बेरियाई से पाक तड़प इस लम्हा ज़ोई की आंखों में थी उसके आगे महब ने इस लड़की के गुनाह न देखे, बस इसको पकड़ कर मैट्रेस पर बिठाया, बहुत नरमी से कलमा पढ़ाया और ये अल्फाज अपनी ज़ुबान पर दोहराते ज़ोई की आंखों में नमी तो थी पर जिस्मो जान की हर बेसुकूनी खत्म हुई। अब उसकी बात तो महब ने मान ली, पर ज़ोई उसकी सवालिया नज़र और सवाल पर नम आंखों से इसे देखने लगी कि अब कुछ नहीं, बस उस आदमी से मिलकर शुक्रिया कहूँगी जिसने मुझे बचाया और वापस चली जाऊँगी। कोशिश करूँगी तुम्हारी कही बात है मरते दम तक याद रख सकूँ। ज़ोई ने पेशेमानी के संग फ़ौरन नज़र झुकाई, जिस पर महब ने सर हिलाते से अफसोस मगर नरम से उसके संग देखा। जो भी था उसकी पूरी लगन से इस्लाम कबूल करना महब के दिल को शांत कर गया। वो इस लम्हा सारे गुनाहों से धुल कर कम अज़ कम महब से ज़्यादा हर कसाफत से पाक होकर उसकी नज़रों के सामने बैठी थी। फिर मोहब्बत दो कौड़ी की भी हो, आशिक के लिए बाइसे ताज़ीम होती है। जहान और तुम्हारा बाप बख्श देंगे तुम्हें। महब की फ़िक्र बड़ी, पता नहीं ये बात उनसे तब तक छुपाऊंगी जब तक हो सका। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? ज़ोई ने अफसर्दगी से बताते पूछा।
तक भाई पाकिस्तान पहुँचे कि मिलकर तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर जैसे वो कहेंगे मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। मोहिब का लहजा नरम होता गया। मतलब तुम कल फिर आओगे मेरे पास? जोए ने फौरी सर उठाया। मोहिब बलोच को हसरत भरी नज़र से देखा। ये वो आदमी था जो हकीकत में से दहला चुका था। मजबूरी है। मोहिब का लहजा बेजार था। खूब सोई मजबूरी चंद दिनों की हो, ज़्यादा लंबी ना हो। जोए ने से नज़र फेरी जो बहुत खुद तरसी की मानत अजीब था। मोहिब भी मजीद बात न बढ़ाते उठ खड़ा हुआ। यहाँ से भागना मत वरना मछली जाओगी। यहाँ की गली कूचों हबीसों हाथों निशान भी ना मिलेगा। तुम्हारा फ्रिज में देख लेना, खाने को काफ़ी कुछ है, जा रहा हूँ। मोहिब ने एहसान जताते अंदाज में निफाम किया। और जब जोए ने बस सर हिलाकर उसकी बात सुनी तो अजीब गमज़दा सी मुस्कुराहट मोहिब बलोच के होंठों पर रेंगी। जिसका कत्ल करता हुआ वो घर से निकले, ताला लगाए वहीं से सीधी गली अबूर की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जोए ने वहीं तक पर सर गिरा हुआ आंखें मोद ली। बाहर नरम मुस्कुराता दिन उतर आया था, जैसे मौसम की हफ्स और घुटन को अपने सर्दे सांस में लपेट लेना चाहता हो। आपू यार एक काम था आपसे। ईमान ने पूरा दिन आलम हाउस में गुजारा। आप अंदर सबसे इजाज़त लेती वो घर वापस जाने को बाहर निकली तो आगे हादी साहब मस्कीन सूरत बनाए खड़े थे। हाँ कहो। ईमान ने वहीं कुर्सी पर बैठे फिक्र से पूछा। पिया ये लड़की अगर नाराज़ हो जाए तो इनको कैसे मनाते हैं? हादी वहीं ईमान के कदमों में बैठे दोनों हाथ ईमान के घुटनों पर जमाए जिस तस्वीर से बोला। ईमान ने फौरी इस छुटके पटाखे का कान दबोचा। वही लुमड़ उम्र देख अपनी भी अभी ज़मीन से पूरा होगा नहीं और चक्कर तेरे अभी से शुरू हो गए। सच सच बताइए कौन सी लड़की का चक्कर है? अरे अब्दुल हादी को कान के दर्द से ज़्यादा इस वक्त जान के लाले पड़ते महसूस हुए। आपू आई मेरा कान सुन तो लें पहले यार, वरना मुझसे लीजू की प्रोजेक्ट फाइल फट गई यार। कसम से मैंने तो पंख ही चल रहा था, वो फटी किस्मत वाली मनहूस पता नहीं कैसे फट गई। अब लीजू मुझसे बात ही नहीं कर रही। आपू अब मुझे होमवर्क कौन लिख कर देगा? हादी की बाकायदा चीख कर दी दुहाई पर ईमान ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट रोकते हादी का कान छोड़ा और दोनों उसकी फुली फुली गालों को दबोचा। ओ आई सी, लेकिन खबरदार मेरी लीजू पर तूने कभी नज़र रखी? लीजू के फेवरेट कैरमल पॉपकॉर्न गिफ्ट कार्ड देखना कैसे मानेंगे? ईमान की आइडिया पर हादी ने फौरी हंसते हुए उठ खड़ा होते अपने दांतों की नुमाइश की। वो तो मैं भी लेकर आया था, पक्का मान जाएगी ना आपू? हादी की क्यूट सी की निहारी पर टेरेस पर खड़ी लीजा नागपुर चढ़ाए हनकारी तो दोनों ने बैग पर गर्दन ऊपर घुमाई। जब तक लीजा जियान आलम इस छछुंदर की 2 रुपए की कापी जैसी शक्ल नहीं फाड़ देती, ये अजीम चलती रहेगी। मेरी फौज का कोई सिपाही हथियार नहीं फेंकेगा। तखलिया लीसा साहिबा के अंदर घुसी अर्तुगरुल की रूह पर ईमान और हादी एक साथ हंसी। आपू ये आजकल अर्तुगरुल का सीज़न 2 देख रही है? मैं तो चला, मेरा एक ही मुंह है, ये भी फट गया तो मैं बड़ा होकर लड़कियां कैसे फंसाऊंगा? तुम नाराज़ ही रहो जंगजू औरत। हादी ने अपनी जान बचाई। जैसे दौड़ा ईमान ने घबरा कर सर उठाया तो अपनी लंबी फ्लेक्सिबल लेड पेंसिल को तलवार बनाकर हवा में बुलंद करती लीजा को देखे अपना सर थाम गई। ईमान 2 मिनट मजीद रुकती तो ज़रूर दिमाग फिर जाता, ऊपर से फ़ोन भी करता। तभी फ़ौरन घर पहुंची ताकि खुशबू से बात करे। मुनीरा अभी तक घर नहीं आई थी क्योंकि उनके दोस्तों के साथ महीने बाद ही आउटिंग हुआ करती थी तो वो पूरा दिन वहीं रहा करती। ईमान ने लंच आलम हाउस में ही कर लिया था। तभी कमरे से फ़ोन लिए वो लान की सिम चली आई और अशवा से बात ना हो सकी क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर था और वो कुछ देर सर दर्द की वजह से सो गई। अनान के दोनों आदमी मायूस से वापस फार्म हाउस पहुंचे तो अनान की होनहार नज़रों ने ही उनका वेलकम भी किया और दहशत ज़दा भी किया। सर हर जगह देख लिया, वो लड़की कहीं नहीं मिली। इन दोनों में से एक ने हिम्मत करते बोलने की जिसारत की। अनान ने कनपट्टी की उभरी रगें एक हाथ से मसलते गहरा सांस खींचा। मैं कुछ नहीं जानता, वो ज़मीन में जाकर गड़ भी गई है, तब भी ढूंढ कर लाओ, वरना तुम तो अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। काट खाते तेवरों के संग अनान ने इन दो की रूह फना की, जिस पर वो डरते सर हिलाते वहाँ से भागने के अंदाज में दौड़े। जबकि अनान की इस कदर चिंगार पर ना सिर्फ आँख खुली बल्कि उठकर बालकनी में आई तो लान में पहुंच के आखिरी किनारे खड़ा गुस्से में धुत अनान दिखाई दिया। किसी दिन आप फट जाएंगे गुस्से से। छोटे छोटे अनान इब्राहिम के पीस मिलेंगे फार्म हाउस के हर चप्पे में। हाँ, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते इस पर चेंज की नीयत से वॉशरूम जाने लगी तो नज़र फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन फ़ौरन से उठाया तो ईमान की 3 मिस कॉल से इश्पा ने कॉल बैक की, मगर नज़र बेसाख्ता ड्रेसिंग मिरर में दिखाई देते अपने गले पर पड़ गई। जहाँ जलन थी वहाँ सुरही देखे इश्बा फिक्रमंद होते करीब आई। लम्हे के 1000वें हिस्से आंखों में गुस्सा उतरा। ईमान शायद साहिर के आने की वजह से रेडी हो रही थी तभी फ़ोन ना उठा सकी। इश्बा ने ईमान को अपनी हैरियत का मैसेज टाइप किया और फौरी वापस बालकनी में दौड़ कर आई। सुने मिस्टर पागल, इश्बा की पुकार पर अनान ने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा जहाँ वो अपनी गर्दन की नुमाइश करती सी खपा हो रही थी। व्हाट इज़ दिस? किस किस्म की दरिंदगी है ये? सबको बताऊंगी आपकी इस तशद्दुद का। मेरी मासूम गर्दन को गंधेरी समझ रखा था? आपकी तो आंखें फोड़ दूंगी, अगर हिम्मत है तो हिलिएगा मत। इश्बा ने आस्तीन चढ़ाई और गरा कर कहे पलटी। जहाँ कुछ देर पहले अताब था वहाँ अब शौक से हमारी थी। 2 मिनट में वो न सिर्फ नीचे आई बल्कि पिपरी मौज बनी ठीक अनान के सामने उसके टुकड़े करते थे कि देने के तेवर दिखाती रुकी। मगर यहाँ अगर सब थम गया, ये तशद्दुद नहीं तंबीह थी। तंबीह को छुपाना ही बेहतर होता है। को दिखाकर अपना मजाक बनवाना है तो कैरी ऑन। नहीं हिला यहाँ से, बहुत हिम्मत है मुझ में। अब बताओ क्या कर लो कि तुम बागियाना उकसाते लहजे में करता हुआ वो उसके करीब हुआ तो इश्बा ने झटके से कदम पीछे मुड़े। बोलो ना, गूंगी हो गई हो? अभी तो बहुत चीख रही थी जैसे पता नहीं कितनी लाशें की रात होगी। अना ने उसकी घबराहट बेबसी और मोहब्बत के सबब खामोशी को तंजिया होते छेड़ा, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस जैसे तूफान बनी आई किसी उदास हवा के झोंके की तरह मुड़कर जाने लगी। बोल लिया करो, जान थोड़ी लूँगा तुम्हारी। उसका मुलायम हाथ पकड़ कर रोके अपनी सिम पलटाए गंभीर लहजे में अपनी पेशानी इस्बा की सर पड़ती जबीन से जोड़ी। जोए को मत तलाश करे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका उसके लिए फ़िक्रमंद होना। न जाने के ऊपर वो जो सो भी गुस्से में गई थी और ये बात अनान के करीब आते लाड करते फौरी कहीं भी जेलस हो रही हो।
ने माथा लग के अशफा की बहुत कुछ कहती आंखों में आंखें डाली, जिस पर अना की देवी ने फ़ौरन सर अकड़ा कर नफ़ी में हिलाया। मेरा यहाँ दम घुटने लग गया। अगर मैं यहाँ मर गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं किसी को अपनी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं बता पाऊंगी। एक तो पेपर्स की टेंशन, ऊपर से आपका तंग करना गुनाह मिलेगा। एक पढ़ाई की सताई हुई गमज़दा को रुलाकर फौरी बारी हुआ दिल आंखों में नमी लाया। इस दर्जा मासूमियत पर अना ने हैरत से एब्रो चुकाते ड्रामा क्वीन को देखा। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ आउटिंग पर चलोगी? मीन्स पेपर से पहले मूड फ्रेश हो जाएगा। नानों के घर अनान के प्लान पर अशफा की नम आंखें चमकी। ईमान भैया, आयस भैया, भाई और इदापिया भी होंगे? अशफा के सवाल पर अनाने से होनहार नज़रों से घूरा। नहीं, पूरे इस्लामाबाद को लेकर चलते हैं, प्राइवेसी नाम की गलती से कोई चीज़ ना मिल जाए। अनान के जल भुनकर बड़बड़ाने पर अशफा की उदासी गायब हुई। आपको प्राइवेसी लेकर क्या करना है? आप तो चलते फिरते मेरा सांस सुखा सकते हैं, मुझे अकेले नहीं जाना। सुन लें कान खोलकर, सब जाएंगे तभी जाऊंगी। अशफा ने फौरी उसके हाथ से अपनी बाजू छुड़वाने के बीच अपनी खुशी का गला घोटा। अच्छा तो फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, मर गई तो मैं पूरी कर दूंगा। इसी हाथ से वापस खींचे अशफा को अपनी जगह। सुन किया, आपको रुलाना है अपने लिए, पर मेरी मौत पर आपको क्यों दुख होगा भला? सो आपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर अगर मेरी विश पूरी करनी है तो मेहरबानी जाएं ढूंढें अपनी ज़ोए फ्राडन को, मैं कुछ नहीं हूँ आपकी। उसके सीने पर हथेलियों से भरपूर दबाव डालती वो नान इब्राहिम को मुस्कुराता छोड़े अंदर भाग गई। लेकिन ये शाम से रात का होता मिलाप और ये लम्हा नान के लिए खास हो गया। इसे लगा वो बहुत जल्द अशफा की ये ख्वाहिश पूरी करने वाला है। और जब एहसास हुआ तो इस हवादार मौसम में इस शख्स का दम घुट कर रह गया। ईमान ने ब्लैक कलर की शॉर्ट, घुटनों से ऊपर तक की कढ़ाई वाली कुर्ती के साथ तंग ट्राउज़र पहना और बालों को नहाकर पहले ही ड्राई किए सी मिंडी बनाकर दोनों तरफ से बाल एक कैचर में क्लिप कर दिए। परफ्यूम लगाए, फेस को मॉइस्चराइज किया, पैरों में हील्स पहनी, मुस्कुराकर नेट का दुपट्टा जहानों पर फैलाई, साइड टेबल पर झुककर अपना फ़ोन उठाकर मैसेज खोले, मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, रात को कॉल करके तुझे आज की कहानी सुनाती हूँ, अभी ज़रा मैं मुहाज पर लड़ने जा रही हूँ। ईमान ने उसका मैसेज पढ़ा तो गुलाबी चमकते होंठों पर मुतबस्सम लम्ब जागा और ये मुस्कुराहट किसी मानूस दीवानी करती खुशबू के इस शख्स से पहले कमरे में आने पर गहरी हुई। ईमान ने फौरी गर्दन घुमाई तो ब्लैक में सजे धजे जलवे बिखेरते इस कमरे के मकीन ईमान की धड़कनों के अमीन साहब वापस आ चुके थे। ईमान को इतना तैयार देखकर फ़ोन और ब्लश दीवानगी के संग जिस तरह साहिर ने मैट्रेस की ओर फेंका वो देखकर ईमान में ब्लश करती अपना फ़ोन रखती उसके पास आने पर हफीफ सा फितरी घबराई। क्या आप सच में आ गए? ईमान ने हाथ बढ़ाकर मुलायम पोरों से साहिर के होंठों को छुए। सरगोशी की मौसूफ को बहका तो वो सज धज कर ही चुकी थी। इस हरकत ने तो साहिर को इसे सीने से लगाकर हिसार लेने पर मजबूर किया। नहीं तो रास्ते में हो तुम्हें भूत दिखाई दे रहा होगा। झुककर अपनी खुरदरी काली मान की ठंडी नरम गाल से रगड़ते इस मदहोश अप्सरा को जालिमाना से यकीन दिलाने की कोशिश की। ईमान ने फौरी दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइल की और जैसे लिपटी। साहिर ने वहीं से इसे संभालने को थामा जबकि अपने पैर ज़मीन से उठे महसूस करती वो बच्चों की तरह साहिर के उठाने पर खिलखिलाई। मैंने बहुत मिस किया साहिर, पूरी रात नहीं सो पाई। ईमान ने गले लगे हीरो हाथ से होते अपनी बेआरामी बताई जिस पर साहिर ने इसे इसी तरह उठाते काउच पर टेक लगाकर बैठते उस पर बिठाया। ईमान की धड़कन बढ़ी। चलो सोते हैं। साहिर की सरगोशी में शरारत थी। ईमान फ़ौरन उसके ओत में बेचने और वजूद की बढ़ती हरारत दम घुटने पर मछली। इस वक्त शाम हो रही है, मम्मा कहती हैं इस वक्त शैतान सोता है। ईमान को सोने से नहीं, साहिर की बेहुद नज़रों से डर लगा जो ईमान के अंदर तक हरारत जगा रही थी। हाँ तो सोने दो शैतान को। आंखें बंद किए वो यूं मदहोश हुए बड़बड़ाए जैसे सस्ता नशा भी करके आया हो। ईमान को लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर जब गर्दन उसकी तरफ फेरी तो साहिर को आंखें बंद किए सोफे की पुट से टेक लगाकर आंखें बंद किए देखे मुस्कुरा दी। लगता है मेरे बिना आप भी नहीं सोए, इतने क्यूट ना बने प्लीज़, खा जाऊँगी आपको। अब जब वो नींद में था तो ईमान कैसे बाज रहती। फ़ौरन से उसको अपने हावी बोझ से आज़ाद किए, साहिर की तरफ करवट फेरे, उसके चेहरे पर हाथ की अंगेज शहादत से लकीर फिरती, उसके गाल से गर्दन की तरफ बढ़ती मुस्काई, मगर वहाँ उसकी शर्ट का बंद बटन रुकावट था। ईमान की आंखों में हमारो शरारत साथ उमड़ी। ईमान अभी सोने दो मुझे। अपनी शर्ट के ऊपर भी बटन से ईमान की लांबी उंगलियों की छेड़खानी पर वो किस्मत आया। और अगर कहूँ कि मुझे आपकी नींद से जलन हो रही है, ईमान ने मज़ीद चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाते कि महकती खुशबू सूंघते लहके एक उदास लहजे में उसके कान से होंठ जोड़े कहा, तो मैं नींद को भूल कर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। अभी तुम जानती नहीं, नींद में डूबा हुआ आदमी बहक जाए तो सामने सामने शेरनी भी हो तौबा कर उठती है। तो मेरी प्यारी शेरनी, अपनी नाजुक जान पर रहम खाते हुए मुझे नींद को प्यारा रहने दें। अपने होठों की नरम शिद्दत उसकी गाल पर बख्शे वो होंठों की सिम से रखने से गुरेज पड़ा। ताहा से खतरनाक अंदाज में ईमान को डरा गया, जिसने उसके लहजे से वाकई जान निकलती महसूस की। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं मिस्टर टुन? ईमान अब भी बाज नहीं। साहिर ने गर्दन सीधी की तो वो उसकी मजबूत सीने पर झुकी हुई जान को चली आई। वहाँ बंद आंखें किए बड़बड़ाता हुआ बहुत उपयुक्त लग रहा था। टुन, कितने अजीब नाम रखती हो तुम ईमान। कालिया टुन, कोई ऐसा नाम लो मेरी ज़ुबान भी मीठी हो। अब इस टुन पर तुम्हारे ख्वास सुन करूँ ना, ताकि तुम्हें पता चले मैं चीज़ क्या हूँ। नींद के खुमार से गुलाबी होती आंखें खोलता बहुत पर झुकी शोह नज़रों वाली हसीना को भी हंसा गया।
अच्छा, तो अब चीज़ है, ईमान का मूड इतना हसीन हुआ था कि साहिर को ये नींद ज़हर लगने लगी। अभी बहुत लाड से पेश आया हूँ, क्यों अपना दिल बंद करवाना चाहती हो, यूँ बहका कर रहम नहीं आता तुम्हें उस पर। साहिर की नींद उसकी आंखों से हौले हौले उड़ी तो ईमान को लगा मस्ती ख़त्म करके शराफत का पल्लू पकड़ लेना चाहिए आता है। वैसे आप एक फ़्लाइट से ऐसे चूर हो गए तो इतने जहाज़ उड़ा कैसे लेते हैं। ईमान को वो थका हुआ प्यारा लगा, निढाल सा, तंग करना भी चाहता था पर हिम्मत ना थी। जहाज़ उड़ाने से नहीं थकता हूँ, जहाज़ में फ़ारग बैठना पूरे जिस्म में थकावट भर देता है। तुम बताओ कैसी गुजरी मेरे बिना चुड़ैल की रात। उसकी थाई पर ठीक से बैठी मगर बाजू अब भी साहिर की दिन में हाइल केस पर झुकी हुई थी। बहुत बुरी, लेकिन आपकी इतनी जल्दी वापस आने ने डबल खुश किया। अच्छा साहिर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ईमान ने नरमी से साहिर के निचले होंठों को गुट्ठे की पोर से जलाया, जहाँ का जख्म तो ठीक था, बस मद्दम सा निशान रह गया था। हाँ पूछो। साहिर ने उसकी मुतफक्किर सूरत देखते फौरी संजीदा लहजा इख्तियार किया। आप मुझे पॉकेट मनी दिया करेंगे क्या। ईमान के सवाल पर साहिब बेसाता मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट ईमान के दिल को हमेशा कुछ स्पेशल असर पहुंचाती है। ऑफ कोर्स ईमान, ये भी पूछने वाली बात है। तुम मेरा क्रेडिट कार्ड अपने पास रख सकती हो, अगर कहोगी तो तुम्हारा बनवा दूंगा। साहिर के जवाब में उनसीयत का जहाँ था। ईमान की चमकती सुनहरी आंखें लोही से खुशी से भर गई। नो, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, बस आपसे ले लिया करूँगी कैश। ईमान ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते प्यार से सरगोशी की। तुम्हारी हर ज़रूरत और खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सब कुछ, तुम्हारा दिल और जान समेत। मोहब्बत पाश लहजा जो ईमान को हर तशनगी से निकाल देता। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। आपने मुझे बताना था आप कहाँ गए और क्या काम था। ईमान को फिर तस्से तजस्सुस हुआ, जिस पर साहिर ने खुद से दूर होती ईमान को भरपूर नज़रों में लिया। बताऊँगा किसी मुनासिब मौके पर, ये मत समझना कि बताना नहीं चाहता, बस अवॉइड कर रहा हूँ। साहिर ने उसकी नरम गाल से हिलाते उसके चेहरे का खूबसूरत नक्शा आंखों से सराहते इख्तिताम ईमान की आंखों में जाग कर किया। जारी है, कैसा लगा आपको मोहिब बलोच, कैसी लगी किस्त। अगली किस्त भी यूं ही मज़ेदार होगी तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐप यूं ही आपको बर वक्त मिलती रहे। बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं 36 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।